हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन वन डे यूथ रिट्रीट में। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर साल 15 अगस्त को वन डे यूथ रिट्रीट मनाते हैं हमारे डायसिस के द्वारा। जो हम इस साल नहीं कर पा रहे हैं, हम नाच नहीं पा रहे, हम गा नहीं पा रहे, बट कोई नहीं, हम अपने डायसिस के द्वारा इस वन डे यूथ रिट्रीट, ऑनलाइन 12th यूथ रिट्रीट को मनाने जा रहे हैं। घर बैठे बैठे, अपने घर बैठे हम यीशु मसीह के नाम की महिमा करने जा रहे हैं। तो आइए हम साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, गाते हैं, उनके नाम की आराधना करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। आज हमारे बीच कल्याण एरिया के चेयरमैन रेवरेंड अगिलेन अय्या प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தம்பி தங்கைமார்களே, உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இன்றைக்கு இந்த ஆன்லைன் மூலமாக நம்முடைய மும்பை பேராயத்தினுடைய வாலிப கூடுகையிலே எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவர் தாமே இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏறெடுப்பதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார். லாக்டவுன் பீரியட்ல இருந்தாலும் கூட இந்த ஆன்லைன் மூலமாக நாம் கூடி வர ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துவோம். இந்த கூடுகை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நல்ல காலை வேளைக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உண்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, அருமையான எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் மும்பை பேராயத்தில் உள்ள பல திருச்சபைகளிலிருந்து எங்களோடு கூட இந்த ஆன்லைன் ஆண்டவரே ஆராதனையிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளின் கூடுகை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், விசேஷமாக அருமையான வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு நாளாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த நாளிலே எங்களோடு கூட ஆண்டவரை இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு போதர்களுக்காக, எங்களுடைய பேராயருக்காக மற்றும் செய்தியாளர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும், விசேஷமாக எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளை ஆண்டவரை நீர் தொடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உங்களுடைய வார்த்தை எங்களோடு கூட ஊடுருவ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாளின் கூடுகையில ஆங்காங்கே இணைந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, எல்லாரும் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பின் அடிப்படையில இவை எல்லாவற்றிலும் நாங்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த கொரோனா பீரியடிலே, ஆண்டவரே லாக்டவுன் பீரியட்ல இந்த கொரோனா வைரஸ்னாலே நாங்கள் பாதிக்கப்படாதபடி எங்களை பாதுகாத்தீர், உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எதுவும் எங்களை பிரிக்க முடியாது என்ற ஆண்டவரே பவுலப்போஸ்தலனுடைய ஆண்டவரை கூற்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்மையாக இருக்கட்டும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உங்களுடைய அன்பை விட்டு எதுவுமே எங்களை பிரிக்க முடியாது என்ற ஆழ்ந்த விசுவாசத்திலே நாங்கள் வளர்ந்து செல்ல கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். துதிகன மகிமையாவற்றை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். மேற்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜெபம் கேளு நல்ல பிதாவே, ஆமென். Have a good day. God bless you. थैंक यू पास्टर जी। इस साल की यूथ रिट्रीट का थीम है वी आर मोर देन अ कॉन्करर। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस मीटिंग का एक सुंदर से गाने के साथ। हमारे बीच ECI कल्याण ईस्ट जेरूशलेम चर्च के एंट्री ऑफ यूथ फेलोशिप के द्वारा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா. ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் இன்னடியார் திருநாமத்தின் ஆதரவில். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் இன்னடியார் திருநாமத்தின் ஆதரவில். நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா. நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு திட்டமில்லை பரனே. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு திட்டமில்லை பரனே.
ஊற்றே நீயாவாய் உண்மையின் வழியே நீயாவாய் உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய் உண்மையின் வழியே நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய் நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. थैंक यू एवाईएफ। तो आइए हम वेलकम करते हैं बहुत ही स्पेशल पर्सन को, ईसीआई मुंबई डायसिस के बिशप राइट रेवरेंड टी कैलब राजन अय्या को फॉर अ वेलकम स्पीच। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबकी स्वागत है। 2020 अगस्त 15 में हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ पास्टर लोग और जो यूथ लीडर्स हम मिलकर ये बात कर रहे थे, इस साल हम कैसे इस जो यूथ रिट्रीट को मना सकते हैं या यूथ रिट्रीट को हमने कंडक्ट कर सकते हैं। तब हमने एक आयोजन किया है यूट्यूब के द्वारा, हम इस प्रोग्राम को कार्यक्रम करेंगे करके। तो उसके हिसाब से हमने ये जो प्रोग्राम में खास प्रेयर, सॉन्ग्स, बाइबल रीडिंग और परमेश्वर के वचन ऐसे जो हम करेंगे ये हम विश्वास किया था और वो आज आयोजन भी किया था। उसके हिसाब से आज हमारे बीच में 2 मेहमान लोग आके परमेश्वर के वचन बताने वाला हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पास्टर आंसले जोसेफ, ये जो पास्टर है यूएसए में कैलिफोर्निया में यूबो करके एक सिटी है, उस सिटी में परमेश्वर की काम और परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, पास्टर के काम सेवा कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए परमेश्वर की वचन ले आ रहे हैं। उनके परिवार के बारे में बोलना होगा तो उनका एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं जो लड़के हैं, तो उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ हमारे लिए जो दिल्ली में गुड़गांव में रहने वाला रॉबिन एडविन, जो वो ब्रदर हमारे लिए परमेश्वर के वचन लेके आ रहे हैं। तो वो नॉर्थ अमेरिका बेस्ड में जो इंडिया में रहने वाला मोजाइम कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और उनके परिवार के बारे में बोलेंगे तो उसका उनकी एक वाइफ और 2 लड़कियां हैं, बेटियां हैं। तो उन्होंने भी परमेश्वर की सेवकाई उनके काम के साथ साथ अनेक जगह में जो करके आ रहे हैं। खास जो दिल्ली में गुड़गांव में एक चर्च में वो मुख्य जो भाग ले रहे हैं। इतना भी नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल में वो अनेक प्रचार भी किया है और परमेश्वर उनको उपयोग करता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये दोनों के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में जो बात करने वाला है, तो हम प्रार्थना के सहित रहेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। आज इस समय में मैं आप लोगों को इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसा रहना, इस बारे में मैं थोड़ा 2 पॉइंट में बताना चाहता हूँ। जो पहली बात यह है, हमको हमारा जीवन में इस जो पैंडेमिक एक नया ऐसा हमको लग रहा है, परंतु इतिहास में हमेशा ये पैंडेमिक सिचुएशन आया है। गया जो 100 साल के पहले भी ऐसे एक कठिनाई जो दुनिया में आई थी, उसके पहले भी आई थी। ऐसे अनेक समय में इस कठिनाई आई ही है, परंतु इस हर एक जो कठिनाई में लोग कैसे पार करना, इस बातों में बहुत चिंतित होकर वो लोग अपना मन, अपना हृदय, अपना ज्ञान को लगा के वो आगे बढ़ा है। ईश्वर भी उनको मदद और सहायता किया है, ऐसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं और इतिहास भी यही बताती है। तो आज मैं 2 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो जोसेफ, जो यूसुफ अपना जीवन में कुछ भी मैंने गलत नहीं किया, फिर भी मैं इस जेल में हूँ करके वो बता रहा है। मतलब जो सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहता था,
परंतु उसके ऊपर झूठे इंसाम लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। फिर भी उनका विश्वास को कभी वो छोड़ा नहीं, कितनी भी तकलीफ मुसीबत, परंतु उसमें अपना जीवन में कभी किसी जो दुख और संकट में आया नहीं। वो बात उनको ईश्वर के नज़दीक में रखना के लिए और ईश्वर की ज्ञान से भरने के लिए बहुत मदद किया करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो वो जो संकट से अंदर घुस के वो गया, परंतु उसके जीवन में पीछे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिली है। पूरा इजिप्ट को जो मिस्र देश का एक अधिकारी बन गया करके परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। और ऐसे पौलुस के जीवन में हम देखेंगे तो जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 21 से लेकर अंत तक हम देखेंगे तो बहुत बड़े समस्या के बीच में जो गुजर रहा था, परंतु सभी जो प्रॉब्लम, सभी तकलीफ को वो तकलीफ ऐसे कभी नहीं समझा, बाकी उसके अंदर कैसे गुजरना है, उसको कैसे उपयोग करना है, ईश्वर के लिए और ईश्वर की सच्चाई के लिए कैसे जीवन जीना है, ये सभी बातों को आगे लेके पौलुस आगे बढ़ा करके परमेश्वर के वचन कहता है। हमको ये अभी कठिनाई के समय है, हम इसमें दुखित और चिंतित होने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है ईश्वर से हम मांगने से, ज्ञान और बुद्धि से हमें भरपूर करके उसमें से कैसा प्रसार करना और कैसे उसे बाहर करना, इस बातों को ईश्वर हमको समझाता करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का और ऑफिस जाने का ये मौका नहीं मिला होगा, शायद कभी कभी हमारा नौकरी भी हमसे निकला गया होगा, परंतु एक बात हम समझना है, हम हमारा ईश्वर की दया से, कृपा से, मैं दूसरा क्या करूं, आगे क्या करूं, वही समझकर हम आगे जाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे वो जेम्स 1 अध्याय 5 कलम में लिखा हुआ, जो कोई अपना ज्ञान में या बुद्धि में कमजोरी है तो ईश्वर से मांगेगा तो ज्ञान देने वाला है। तो ईश्वर से हम मांगेंगे और हम आयोजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जरूर हमारे जीवन में ईश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। मैं खास इस जो यूथ रिट्रीट को आयोजन किया हुआ पास्टरों के लिए, एरिया चेयरमैनों के लिए और जो यूथ लीडरों के लिए और यूथों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग इसमें भाग ले लो और परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करो। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये जो रिट्रीट हमने मनाने के लिए आपने कृपा किया, सर हम धन्यवाद करते हैं। इसके द्वारा प्रभु हम सब आपके आशीर्वाद प्राप्त करने, कैसे हम इस दुनिया में जीना है वो सब सीखने हमें कृपा कर। हम सबका आप आशीर्वाद कर, छोटी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू बिशप भैया। आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बाइबल रीडिंग के साथ। The scripture portion for 12th one day youth retreat is taken from Romans chapter 8 verse 31 to 39. Romans chapter 8 verse 31 to 39. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor this present, nor things to come, nor heights, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. थैंक यू ब्रदर। आइए हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं। उससे पहले हमारे बीच उपस्थित रेवरेंड सुनील गावित जी प्रेयर करेंगे। लेट्स प्रे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। हे हमारे अनुग्रहकारी और जीवित खुदावन, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट आते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए और जीवन की सभी आशीषों के लिए जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में देते हैं। प्यार खुदावन, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इन सुंदर माध्यमों के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी तारीफ कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन उपकरणों के लिए जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के से जुड़ सकते हैं और इस रीति से आपकी महिमा कर सकते हैं। आज विशेष करके प्रभु जबकि हम लोग इस रीति से आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और पिता परमेश्वर आपसे विनती आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप पिता परमेश्वर सारे सृष्टि के रचने वाले, सब कुछ आपके हाथों में है और इसीलिए पिता परमेश्वर आपके वचनों की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते, उन प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए हम आज फिर से एक बार आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेष करके आज प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए प्रभु, जो कि कोविड-19 की महामारी से पीड़ित हैं। हमारे देश में और पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। दयालु पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करें, आप उन पर रहम करें। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी कमी जो भी घटी उनके परिवार में, उनके समाज में हुई है, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु हम दुआ करते हैं प्रभु आप अपने वचन से, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें दिलासा दे, सांत्वना दे, ताकि पिता परमेश्वर वे आप में बल पकड़े और आगे बढ़ने वाले हो सके, आपकी स्तुति आपकी तारीफ करने वाले हो सकें। प्रभु आज जबकि हम ECI मुंबई डायोसिस के यूथ के रूप में या मिल करके आपकी आराधना करते हैं, आपके वचनों को सीखते हैं, प्रभु हमारे साथ हमारे सभी जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहें, उन पर आपका अनुग्रह रहे, ताकि प्रभु अपने जवानी के समय में आपको अपना सृजनहार करके, जान करके प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सकें। हमारे जवानों के जीवनों को देख करके बहुत सारे लोग आपकी महिमा आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस विशेष दिन जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचन जो जीवित है, आपके वचन जो पवित्र हैं, आपके वचन जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, प्रभु इन वचनों के माध्यम से आज हमसे बातें करें, हमारे सभी जवानों के साथ बातें करें। हमारे जो वक्तागण हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करें, अपने सामर्थ्य को उन्हें दें, ताकि प्रभु एक एक लफ्ज जो उनके मुंह से निकलता है प्रभु वे आपकी ओर से हो और हम सबों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ये वचन महत्वपूर्ण साबित हो सकें। दयालु पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे साथ जुड़े सबों को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी दुआओं को सुना है और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे दुआओं का हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। इसी विश्वास के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के सिचुएशन में ये मास्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अपने शरीर के लिए, उसी तरह हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें बताने आ रहे हैं ब्रदर एस्ले जोसेफ फ्रॉम कैलिफोर्निया। आप सबको जय मसीह की। आइए थोड़ा समय हम प्रभु के वचन में देते हैं, उसके वचन को सीखने, उसके वचन में से पढ़ने और कुछ उत्साहित बातों को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए। आज मैं आपके बीच में रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय 31 से लेकर 39 पद से कुछ बातें रखना चाहता हूं। और मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज हम में से हर एक, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे किसी और देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आज कहीं ना कहीं जो भी हमारे चारों ओर चल रहा है, चाहे पेंडेमिक हो या फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो या फिर आप नाम ले, इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे चारों ओर चल रही हैं। हम में से हर एक जना कहीं ना कहीं इन बातों से प्रभावित है। हम में से बहुत से लोग निराश हैं। इनफैक्ट आप इंडिया में देखिए, इन दिनों सुसाइड लोग कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट दुनिया के कई देशों में जो सुसाइडल रेट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? क्योंकि इंसान, जवान चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, हर कोई आज
एक आशा को अपने जीवन में खोता चला जा रहा है, होप खोता चला जा रहा है, और उन्हें लग रहा है कि वो जिंदगी की इस लड़ाई को हार चुके हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना उनके लिए अब मुमकिन नहीं है, उनके पास में आने वाला कोई फ्यूचर नहीं बचा है। लेकिन आज मैं वचन से, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी जोखिम, चाहे कोई भी बदहाली आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, यदि आप मसीह यीशु में हैं, यदि आपके जिंदगी में यीशु मसीह है, तो आप हर हाल, हर परिस्थिति में, हर समस्या, हर बीमारी में, हर चुनौती में एक जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। You are more than a conqueror through Jesus Christ who loves you. आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रोमियो की किताब और उसके 8 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है 31 पद से, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए दिया, और यहां पर पौलुस कहता है कि अगर उसने अपना इकलौता कीमती बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया, तो बाकी सब चीजें फिर क्या है देने के लिए? हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने हुए हैं। लेकिन 37 पद में ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। परंतु हम इन सब बातों में, किन सब बातों में बात कर रहा है जो हमने पढ़ा 35वें पद के अंदर? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, डेंजर, मुसीबतें, इन सब बातों में प्रभु का वचन कहता है हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। अक्सर जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं और जब लोग डिफीटेड फील करते हैं, अक्सर उसका कारण ये होता है, और उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि मैं कोई किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे जगह से नहीं आया। मैं भी आपके ही समान हमेशा मुश्किलों से होकर गुजरता हूं, और एक समय था मेरी जिंदगी में जब मैं भी बड़ी ही परेशानियों से होकर गुजर रहा था। सारा जोर लगा लिया, सारी बुद्धि लगा ली, सारे रिसोर्सेस लगा लिए, लेकिन मैं अपनी परेशानियों से निकल नहीं पाया। एक हारी हुई जिंदगी जी रहा था और समझ में नहीं आता था कि इस जिंदगी में कभी मुझे जय भी मिलेगी कि नहीं, कभी इस जिंदगी में विक्टोरियस होऊंगा भी कि नहीं, या अपनी इस जिंदगी में कभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा भी कि नहीं। लेकिन एक दिन आया जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, और जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, उसके द्वारा, अपने बल से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो किया उसके द्वारा, जैसा उसका वचन कहता है, मैंने एक जयवंत जीवन जीना सीखा, एक्सपीरियंस किया, और आज खुदा का शुक्र है कि मैं जानता हूं कि एक विक्टोरियस लाइफ में जी रहा हूं, एक विक्टोरियस लाइफ में जी रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप अपने आप में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आज आप अपने आप में निराश महसूस कर रहे हैं, या आपको अपने सामने परेशानियां, मुश्किलें दिखाई दे रही है, अपना जोर लगाना छोड़ दीजिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए। यीशु मसीह के द्वारा आपको जय मिलेगी। दिस इज व्हाट दिस वर्ड सेज। यही ये वचन भी कहता है। 8 रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 37 पद, परंतु इन सब बातों में, जैसे मैंने बताया, मुश्किलों में, बीमारियों में और बुराइयों में, इन सब बातों में हम लोग क्या हैं? जोखिमों, तलवार में, उपद्रव में क्या है? हम उसमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। किसने हमसे प्रेम किया? मसीह यीशु ने आपसे प्रेम किया। आप मसीह यीशु के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन।
सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा ही हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों हम लोग मसीह यीशु में जयवंत से ही बढ़कर हैं? क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, तो बाइबल में यह दिखाती और बताती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने सारे मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान को दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और सबसे अद्भुत बात जो किसी ने नहीं की उसने कर दिखाई, और वो ये कि उसने मृत्यु पर जय पाई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी हाँ, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु, उसको यीशु मसीह ने हरा दिया। और इसलिए अब जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो कोई भी उसके नाम से उद्धार पाता है, उसको वो जय जो यीशु मसीह ने मृत्यु पे पाई है उसे ही मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप या कोई देश कहीं वॉर करने जाता है, कहीं लड़ाई करने जाता है, तो पूरा देश या देश के नागरिक उस लड़ाई में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्व कौन होता है? मोस्टली आर्मी इन्वॉल्व होती है, जनरल्स इन्वॉल्व होते हैं, या लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। लेकिन उस देश को, उस ग्रुप को जब जय मिलती है, तो वो जय, वो विजय सिर्फ उस आर्मी की नहीं होती, लेकिन उस देश के उन सारे लोगों की होती है जो वहां के नागरिक हैं और उस ग्रुप, उस देश से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे कर दिखाया, यीशु मसीह ने जो जय पाई है, वो सिर्फ यीशु मसीह की नहीं है, लेकिन उन सब की जय है, उन सब की विजय है, उन सब की ताकत है, उन सब की सामर्थ है जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में है। ये जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाया है, जिनके जिंदगी में यीशु मसीह है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज। हो सकता है कि आप भी निराशाओं से होकर गुजर रहे हो सकता है कि आप भी हताशाओं से होकर गुजर रहे हो सकता है कि बहुत सारी आने वाले कल की चिंताएं आज आपके सामने हो। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, यीशु मसीह में मजबूत बने रहिए, क्योंकि हर मुश्किल हट जाएगी, हर मुश्किल और हर जो परेशानी है उसका समाधान निकलेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है, यीशु मसीह आपके साथ में है। 3 बातें आज मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद में हम अंत में छोटी सी एक प्रार्थना आपके संग करना चाहेंगे। 3 बातें, अगर आज आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आज आप अपने जीवन में डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, अगर आज आप अपने जीवन में आशाहीन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में कभी विक्टोरियस, सामर्थ्य महसूस कर भी पाऊंगा कि नहीं, तो मैं आपके लिए इन 3 बातों को आज प्रभु के वचन से रखना चाहता हूं। रोमी की किताब उसके 8 अध्याय और 37 पद में जैसा पढ़ा कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं उसके द्वारा जिसने हमसे मोहब्बत की, जिसने हमसे प्रेम किया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। कैसे आप एक विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं, इसके बारे में मैं 3 बातें आज इस समय आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। सुनने में बहुत आसान लगता है, हाँ, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात से चूक जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। मैं कई लोगों से बातें करता हूं, कहता हूं कि अगर आपके जीवन में परेशानी है, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट इन जीसस? क्यों ना आप यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए कि वो आपकी मुसीबतों, आपकी जिंदगी को बदलता तो है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऐसे करके बोलते हैं। मैं भी एक समय था जब ऐसे ही बोलता था, हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक समय आया जब मैंने सच में अपने घुटनों को टेका और कहा, प्रभु मैं अपने आप से अब ये नहीं कर सकता, यीशु मसीह मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मैं आपके ऊपर इस समय ट्रस्ट करना चाहता हूँ, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों के समाधान को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर प्रभु मैं आप पे भरोसा रखना चाहता हूँ। और मेरी यही गवाही है कि मेरी जिंदगी तब से बदल गई, मेरी जिंदगी तब से बदल गई। मैं भी मारपीट, गैंग, पुलिस केसेस, इन सब में इन्वॉल्व था, ड्रग्स, और आप बोलिए क्या नहीं, सब कुछ मैं इन्वॉल्व रहता था। लेकिन मेरी जिंदगी यीशु मसीह ने बदल दी। हारी हुई जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, मैंने एक जिंदा और जयवंत विक्टोरियस लाइफ को जीना शुरू किया। प्रभु का वचन बताता है, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में प्रभु का वचन हमें बताता है, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household। मसीह यीशु पर विश्वास रखो और तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। किन बातों से बचाया जाएगा? किन चीजों से बचाया जाएगा? शैतानी चालों से,
बुराइयों से और उन बातों से जो हमें तोड़ती हैं और हमें खत्म कर देना चाहती हैं, उन बातों से, और अल्टीमेटली हमें पिता से मिलाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसे अपना मुक्तिदाता और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तो आप उद्धार पाएंगे। दूसरी बात, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय और उसके 12 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सभी को उसने परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया। जैसे मैंने कहा था ना, यीशु मसीह ने जय पाई है मृत्यु पे, यीशु मसीह ने शैतान और उसकी सारी चालों पे जय पाई है, और अब जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करता है वो जय उसे मिलती है। कैसे? उस अधिकार के द्वारा जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है कि अब हम भी परमेश्वर पिता की संतान हैं, उसके बच्चे हैं। और क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान, बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो ये सुरक्षा, ये जय आपके ऊपर भी आ जाती है। पहली बात, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता आपने विश्वास किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप यीशु मसीह को जानते हैं कि नहीं। मेरा नाम एशली जोसेफ है, और जैसा नाम से आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैं किसी क्रिश्चियन ईसाई परिवार में पैदा हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। 18 साल की उम्र में मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह थी, और जैसे मैंने बताया ना, हर गलत बात में मैं इन्वॉल्व था। निराशा, हताशा और जिंदगी का अंत मुझे अपने सामने दिख रहा था। ऐसे समय में जब मैंने यीशु मसीह को पुकारा, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी, उसने मुझे हार से जय की ओर, डिफीट से विक्ट्री की ओर वो मेरी जिंदगी को लेके आ गया। बुराई से भलाई की ओर, गंदगी से सफाई और अच्छाई की ओर उसने मेरी जिंदगी को मोड़ दिया और बदल दिया। जब से मैंने यीशु मसीह को पाया, उस पर विश्वास किया, उसने मेरे जीवन को बदला और मुझे एक नया जन्म दिया। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो ये सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ, मेरी भी यही कहानी है, मेरी भी यही, मेरे जिंदगी की भी यही बातें हैं। अंत में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, रिपेंट ऑफ योर सिन। अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए एक सबसे बड़ी रुकावट हमारे जीवन में है, वो है पाप। वो है पाप। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में, इफ वी कन्फेस आवर सिन, ही इज फेथफुल एंड जस्ट एंड विल फॉरगिव अस आवर सिंस एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर साफ है, और पाप वो गंदा है। कोई भी गंदी या अपवित्र चीज परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकती। और इसलिए यदि आपके और मेरे जीवन में पाप होगा, तो हम लोग भी परमेश्वर की उस प्रेम को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की उस फॉरगिवनेस को, परमेश्वर की उस भलाई को, उस जय को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, एक ऐसा जीवन बिताना जो क्षमा से भरा हुआ हो। और ये क्षमा हमें कैसे मिलती है? यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह के पास में आकर अपने पापों का अंगीकार करने से। बाइबल क्या कहती है? लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1:9 में, इफ वी कन्फेस आवर सिन, यदि हम अपने अपराधों को मान लेंगे तो वो पूरी तरह से विश्वास योग्य, धर्मी है, उन सारे पापों से हमें माफ करने और छुड़ाने में। अगर आपके जीवन में आज कोई भी पाप है, क्यों ना प्रभु के पास में आए, पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें और उससे कहें, प्रभु इन पापों की वजह से, इन पापों के बोझ की वजह से जो मेरे जीवन में बुराई है, जो मेरे जीवन में शैतानी कब्जा है, प्रभु तू मुझे उन सब बातों से छुड़ा, मुझे एक नई राह दिखा और मेरे जीवन को तू बदल। बाइबल कहती है, एक बार फिर से जैसे मैंने पढ़ा था यूहन्ना 1 उसके 12 में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे यीशु ने उन्हें परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया। तो यदि आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं, उनकी माफी खुदावन से मांगते हैं, तो वो आपको साफ करके, उन बुराइयों से निकाल कर, आपके पापों को माफ करके अपनी संतान होने का अधिकार देगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है, यूहन्ना 3:16 में मेरे सबसे पसंदीदा वचनों में से है, कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। विश्वास करना है उसके ऊपर, पापों से पश्चाताप करना है,
ताकि हम लोग एक जयवंत जीवन जीने पाएं और पाने पाएं। तीसरी और आखिरी बात जो बहुत से मसीहों के जीवन में दिखाई नहीं देती है, बहुत से मसीहों के जीवन में दिखाई नहीं देती है। कई मसीह होते हैं जो जिन्होंने उद्धार पाया होता है, जिन्होंने पापों से पश्चाताप तौबा की होती है, लेकिन फिर भी तीसरी बात जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है वॉक इन द अथॉरिटी एंड द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम के अधिकार और सामर्थ में चलना सीखिए। हालेलुया। वॉक लाइक अ सन, वॉक लाइक अ सन, अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस। एक राजा, एक राजकुमार, एक राजकुमारी के तरह उसके बेटे, राजा के बेटे और बेटियों की तरह चलना सीखिए। बाइबल क्या कहती है? बहुत खूबसूरत बात लिखी है बाइबल में, या लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 17 से लेकर 20 पद में लिखा हुआ है, द 22 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. यीशु मसीह ने 72 यीशु मसीह ने 72 लोगों को सेवकाई के लिए भेजा था। और बाइबल कहती है जब वो लौट के आए यीशु मसीह से वो कहते हैं, लॉर्ड इवन द डीमन सबमिट टू अस इन योर नेम। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी तेरे नाम से हमारे सामने समर्पण कर देती हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? He replied in verse 18, I saw Satan fall like lightning from heaven, कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. वो कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि सांपों को कुचलो और बिच्छुओं और हर एक तरह की शत्रु की सामर्थ के ऊपर अधिकार ले लो, और कोई भी ये ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगी। यहां पर जब सांपों और बिच्छुओं की बात हो रही है, यहां पर लिटरली जानवरों की बात नहीं कर रहा है प्रभु, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं, उन दुष्ट शक्तियों की प्रभु बात कर रहा है जो आपके और मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। पर वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें, किन्हें? जिन्होंने मेरे नाम से उद्धार पाया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा यीशु के नाम में पाई है, मैंने उन्हें ये अधिकार, ये अथॉरिटी अपने नाम में दी है। ये सब चीजें तुम्हें छू भी ना पाएगी। कम ऑन, अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या, परेशानी है, प्रार्थना में जाइए, यीशु के नाम में अधिकार लीजिए और उन विपत्तियों, उन बुराइयों को, उन परेशानियों को अपने पैरों के नीचे यीशु के नाम से ले आइए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, कहिए प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है, तूने मुझे दुष्ट की ताकतों के ऊपर अधिकार दिया है प्रभु, और आज मैं उस अधिकार के साथ में प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुझ में मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। कहे मेरे साथ में, मैं यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। आमीन। यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आज आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, अगर आज आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, जैसा मैंने अभी तक आपके सामने रखा। रोमियो उसके 8 और उसके 37 में एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, वहां कहता है कि अब हम मसीह यीशु में, जिसने हमसे प्रेम किया, जैवन से भी बढ़कर हैं। अपनी सामर्थ में नहीं, लेकिन मसीह की सामर्थ में। तो इसलिए अगर आज आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं। उस अधिकार का उपयोग कीजिए, उस सामर्थ का जो मसीह ने आपके अंदर दी है उपयोग कीजिए, उसमें वॉक कीजिए। लेकिन आप, मुझे शायद पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, या आपने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, चर्च आते रहे लेकिन कभी सोचा नहीं मसीह को अपनी जिंदगी देने के लिए। आप हो सकता है कि आज अपनी लाइफ डिफीटेड फील और जी रहे हैं। हो सकता है ये समय आपके लिए है। क्यों ना आप इस समय एक कदम उठाएं, एक निर्णय लें कि प्रभु बहुत हुआ, मैं अपनी सामर्थ से अपनी जिंदगी में जीता रहा, लेकिन इस समय क्यों ना प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप दूं। एक समय था मेरी जिंदगी में जब मैं 18 साल का था, 2002 की बात है। मैं भी बहुत स्केप्टिकल था,
पता नहीं ये क्या बातें हो रही हैं। लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी, मैंने देखा कि उसने सच में उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अगर यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज मैं किसी जेल में सड़ रहा होता, बुराइयों में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा होता, हारे हुए इंसान की तरह। लेकिन जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आया 29 जून 2002 को, उसने मेरी पूरी तरह से ज़िंदगी को बदल दिया। और उसके बाद से मैंने कभी भी एक हारी हुई ज़िंदगी नहीं जी। एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवन से भी बढ़कर ज़िंदगी तब से मैं जीता चला आ रहा हूँ और हमेशा जीऊँगा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी सामर्थ पे नहीं लेकिन प्रभु की सामर्थ पे भरोसा रखता हूँ। मैं अपनी ताकत पे नहीं, अपने गुणों पे नहीं, लेकिन प्रभु ने जो मेरे लिए किया है उस पर भरोसा रखता हूँ। और मैं आज आपको यही इनकरेज कर रहा हूँ कि ये आपके लिए भी अवेलेबल है। आप भी उस सामर्थ को, उस ताकत को, उस जय को, उस विक्ट्री को अपने जीवन में लिए चल सकते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो क्यों ना ये समय मेरे संग आप प्रार्थना करें, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें और रीच आउट कर सकते हैं हमें अगर आपने इस निर्णय को लिया है। हम आपसे और भी अधिक बात करना चाहते हैं। एनीवे, आइए हम लोग प्रार्थना करें। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी है तो ये समय आपके लिए है कि आपको और हारी हुई ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप भी एक जयवंत जीवन जी सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय जो भी भाई बहन इस समय हमसे जुड़ा हुआ है और इस समय आप उसके दिल से बात कर रहे हैं प्रभु, और मेरी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यदि वो भाई वो बहन अपनी ज़िंदगी में निराश है, हताश है और अपना जीवन इस समय वो आपको देना चाहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी ज़िंदगी को, उस भाई बहन की ज़िंदगी को प्रभु आप अपनी शांति, अपनी सामर्थ, अपनी जय, अपनी विक्ट्री से इसी समय भर दीजिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है जबकि वो अपना मुंह खोल के अंगीकार करते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, प्रभु आप उनके जीवन में आइए और उन्हें नया जन्म दीजिए। उनकी ज़िंदगी को प्रभु आप बदल दीजिए जैसे आपने मेरी ज़िंदगी को बदला। प्रभु उन्हें एक नई राह दिखाइए। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज भी आप हमारे ज़िंदगियों को बदल रहे हैं और हमसे प्रेम रखते हैं। आप नहीं चाहते कि हम एक हारी हुई ज़िंदगी जिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम एक विक्टोरियस लाइफ जिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी इस समय मेरे संग प्रार्थना कर रहे हैं उनमें से हर एक भाई बहन, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा आपके नाम में, आपके द्वारा, आपकी सामर्थ और आपके प्रेम के द्वारा एक जयवंत जीवन बिताने पाए। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में इस दुआ को हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सच अ मोटिवेशनल मैसेज। जैसे कि आपने सुना कि हमें 3 चीज अपने लाइफ में रखना है कि हमें अपने लाइफ में विजय पाना है। तो वो 3 चीज है, पहला बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। और दूसरा है कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। और तीसरा है हमें यीशु मसीह के नाम और अधिकार पे चलना है। तो भाइयों और बहनों, इस मैसेज को अपने लाइफ में यूज कीजिए कि हम यीशु मसीह के राह पे चल सके, अपने आप को अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने लाइफ को विजय पा सके। इन 3 चीजों को याद रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। चलिए एक सुंदर सा गाना हम सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। सा पा रे गा पा रे गा मा पा रे सा सा पा रे गा मा पा रे गा मा पा रे सा
पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 थैंक यू एवाएफ। तो चलिए हम आज के स्पेशल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो हमारे ECI ठाकुरली चर्च के मैसाया यूथ टीम ने किया है। तो चलिए देखते हैं क्या स्पेशल किया है। ஹலோ ஹலோ. சொல்லுங்கண்ணா. டேய் தம்பி, 3 மாசமா வீட்டு வாடகை கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் ஐடியா இருக்கா இல்லையா? முயற்சி பண்ணுறேண்ணா, வாடகை சீக்கிரம் தந்துடுறேன். உனக்கு 1 வீக் தான் டைமு, அதுக்குள்ள நீ வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடிஞ்சா கொடு, இல்லைன்னா வீட்டை காலி பண்ணிடு. உன் சாமான் எல்லாம் வெளியே தூக்கி போட்டுருவேன். ஆண்டவரே, எப்படியோ ஹவுஸ் ஓனர் 1 வீக் டைம் கொடுத்துருக்குறாரு. உங்களை நம்பி சரின்னு சொல்லிட்டேன். நீங்கள் தான் உதவி செய்யணும். சரி, நம்ம பாஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி பார்ப்போம். 3 மாதம் சேலரி பெண்டிங்காக இருக்குது, கேட்டு பார்ப்போம் கிடைக்குதான்னு. ஹலோ, யாரு? ஹலோ சார், நான் உங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற அனீஷ் பேசுகிறேன். சார், வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்க முடியல சார். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் சம்பளம் தர்றதுக்கு ப்ளீஸ். நான் வச்சுக்கா தர மாட்டேன்னு. இந்த லாக்டவுன் டைமில் எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கே வர வேண்டிய காசு ரொம்ப இருக்குது. எனக்கு பெண்டிங்காக இருக்க காசு சும்மா 3 கோடிக்கு மேலே இருக்கியா? ஆமாம், நீ தான் ப்ரேயர் வந்து பண்ணுவல, நீ தான் ஏசப்பான்னு ஆஃபீஸில் வந்து ரொம்ப பைபிளாக ரீட் பண்ணிட்டு நீ வேணா ப்ரேயர் பண்ணு. உன் ஏசப்பாட்ட சொல்லு உன் பாஸுக்கு வர வேண்டிய காசுலாம் வரணும்னு. வந்தால் நான் ஏன் வச்சுருப்பேன், அவன் தந்துடுறாயா? சரியா? இவனுங்க வேற வேலை இல்லை. அரிசி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். அரிசியும் ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கு. ஒரு நாள் வர்றது கூட ரொம்ப கஷ்டம். என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. தங்கச்சிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி கேட்போம். ஹலோ, அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேம்மா, நீ எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நான் எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா கடனா வேணுமா? 10,000மா? 10,000க்கு நான் எங்கன்னா போறது? நாங்களே கஷ்டத்துல தான் இருக்கோம்னா, கஞ்சி தானா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்க. இல்லை பரவாயில்லம்மா, நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துருங்க, உடனே பார்த்துக்கோங்க. பாய்மா. எனக்கு வேற வேலை இல்லை. 10,000க்கு நான் எங்க போறது? எல்லார்கிட்டையும் உதவி கேட்டு பார்த்தாச்சு, யார்கிட்டையும் கிடைக்கல. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம், அவர் நமக்கு என்ன நன்மை வச்சிருக்கிறார். கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாட விட்டார். நன்றி சொல்லுவே. அம்மையன் உமது வார்த்தை சொல்லுகிறதப்பா, தாவீது காரணமாய் கற்றுத்தருகிறான். கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் என்றுப்பா. இந்த லாக்டவுன் காலங்களில் அநேக மனிதர்களிடத்தில் உதவிகளை கேட்க போனேன் ஆண்டவரே. ஒரு இடங்களில் உதவிகள் கிடைக்கவில்லை.
நான் உண்மையே நம்புகிறேன் ஆண்டவரே. நீர் எனக்கு என் பாரங்களை நீக்கி உதவி செய்யுங்க, போஷிங்க, கடன் பிரச்சனைகளை தீருங்க. மேய்ப்பர் இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். அக்கா நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிச்சுல எனக்கு ஒரு விஷன் வந்துச்சு. அப்படியா? எனக்கும் விஷன் வந்துச்சு. யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தம்பி. அக்கா நம்ம தால் ரைஸ் பேக் பண்ணி பக்கத்து தெருவுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வரலாமா? ஓகே. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்ஸ் இந்த ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு. ஆண்டவரே உங்களுக்கு நன்றி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன், இந்த உதவி நீங்கள் தான் உங்கள் தேவதூதருக்கு நான் அனுப்பியிருக்கீங்க. நன்றி அப்பா, நன்றி, உமக்கே நன்றி உண்டாகட்டும். ஆமென். ஹலோ அனீஷ், யோ என்னையா மேஜிக் பண்ண நீ? ஃபோன் பண்ணி 2 நாளில் எனக்கு வர வேண்டிய எல்லா காசும் வந்துருச்சு. சரி பாரு, நான் உன்னோட அக்கௌண்ட் வந்து உன்னோட 3 மாதத்துக்குள்ள சேலரி அனுப்பிட்டேன். சரியா? வேலை ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். சரி, தேங்க்யூ சம்பளம் தந்ததுக்கு. ஆண்டவருக்கு கிருபையில் சேலரி கிடச்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹவுஸ் ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி ரெண்ட்டுக்கு கொடுப்போம். ஹலோ ஹலோ அண்ணா, நான் அனீஷ் பேசுகிறேண்ணா. அண்ணா எனக்கு சேலரி கிடச்சிருச்சுண்ணா. உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் தாங்க, நான் உங்களுக்கு வீட்டோட ரெண்ட் அனுப்பி விட்டுடுறேன். டே தம்பி, சாரி தம்பி, நான் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் உன் கஷ்டத்தை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை. நான் இவங்கள்ட்ட அப்படி பேசியிருக்கே கூடாது. வீட்டு வாடகைலாம் வேண்டாம்ப்பா, நீயே வச்சுக்க. அண்ணா பரவாயில்லண்ணா, அக்கௌண்ட் நம்பர் சென்ட் பண்ணுங்க, நான் அனுப்பிடுறேன். இல்லை தம்பி, வேண்டாம் தம்பி. ஒரு அண்ணனா ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீ நினச்சிக்கோ. சரியாப்பா, பார்த்து இருந்துக்கோ. ஓகேப்பா. ஆண்டவர் கிருபையில் நம்ம ஹவுஸ் ஓனர் கண்ணில் கிருபை கடிச்சு ரெண்ட் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த பேண்டமிக் டைமில். சரி, இந்த பணத்தை நம்ம தங்கச்சிக்கு அனுப்பி விட்டுறலாம், அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம். யார் இந்த நேரத்தில் கால் பண்ணுறது? நிம்மதியாக ஒரு சீரியல் கூட பார்க்க விட மாட்டேன். ஐயோ, அண்ணா இந்த டைம் எனக்கு கால் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. இவன் வேற பைசான்னு சொல்லிட்டு இருப்பானே. சரி, கால் அட்டன் பண்ணுவோம். ஹலோ அண்ணா. ஹலோ ஜென்சிமா, உன்னோட அக்கௌண்ட்டில் 15,000 அனுப்பியிருக்காம்மா. அது நீ எடுத்துக்கோ, குடும்பத்தை பார்த்துக்கோங்க, பார்த்து இருங்க. எதுனா கஷ்டம்னா அண்ணன்கிட்ட கேளுங்கம்மா, அண்ணன் இருக்கேன். ஐயோ சாரி, நான் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டேனா? நீ எந்த ஒரு பொய் சொன்னாலும் பரவாயில்லம்மா, வேற அண்ணனுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோ. அண்ணன் உங்களை பார்த்துக்கிறேன். இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அண்ணன் உங்களை வந்து ஊரில் வந்து சந்திக்கிறேம்மா. பாயமா, பார்த்து. பிரைஸ் லார்ட் எவ்ரிவன். இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்கிட்ல வந்து பிரதர் அனீஷ் வந்து இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாருன்னு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். இதே மாதிரி கஷ்டத்தில் நீங்களும் இருந்து கொண்டே இருக்கலாம். இருந்தாலும் அவருடைய தேவனுடைய அன்பில் நிலைத்திருந்ததுனால அவர் ஜெயம் பெற்றுக்கொண்டார். இதே மாதிரி நீங்களும் தேவனுடைய அன்பில் நிலைத்திருங்க, ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆமென். तालियां तो बनता है. वाओ, मैसिया यूथ टीम, ऑसम स्किट था. जैसे कि आपने देखा इस स्किट में हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन आया है, हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन आता है. तो हमें जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में रखना है और वो हर किसी प्रॉब्लम को चुटकियों में विजय दिलाता है. तो इस स्किट से हमें आज यही सीख मिली है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम घुटनों पर बैठकर प्रेयर कर दे तो हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स परमेश्वर हमारे साथ रहकर विजय दिलाता है. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बाइबल रीडिंग की. संहिता 127. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा. यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा. तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है. देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है. गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है. जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उससे भर लिया हो. वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा. थैंक यू सिस्टर. हमारे बीच आज उपस्थित है रेवरेंड एडविन सैमुअल जी, जो हमारे लिए स्पेशल प्रे करने वाले हैं.
तो आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय अपने पास आने का सौभाग्य दिया। आप इस्राएल के रक्षक हो, न तो कभी ऊँघते हैं न तो कभी सोते हैं प्रभु, परंतु हमेशा आपकी कान आपके लोगों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रभु हम इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 के कारण प्रभु जो हमारे देश का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है प्रभु, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभु, व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, परमेश्वर पिता फाइनेंशियली क्षेत्र में प्रभु जी, आज हमारा देश संकट की कगार पे खड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हमारी सारी समस्याओं का उत्तर है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश से प्यारे प्रभु इस कोरोना वायरस को समाप्त कीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपके लोगों पर दया हो, इस देश पर आप दया कीजिए प्रभु। आपने दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 वचन में कहा है कि मेरी प्रजा के लोग जब मेरे कहलाते हैं, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपने बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि प्रभु अपने लोगों के अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु। हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। इस देश के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं कि इस देश के लोगों के अपराधों को क्षमा करो और हमारे देश पर दया करो प्रभु, ताकि हमारे देश की जो स्थिति है प्रभु, इस पूरी स्थिति से प्रभु हमारा देश बहुत जल्दी बाहर आए परमेश्वर। और प्रभु जो लोग निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत कठिन परिस्थिति है। इस कठिन परिस्थिति से प्रभु जी हमारे देश के लोग आपके अनुग्रह के द्वारा छुटकारा पाए प्रभु परमेश्वर। आपका वचन में दाऊद कहता है कि यहोवा के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग, निर्बुद्धि लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रभु। आपका वचन जो आपके दास के मुख से निकले, उसके द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों पर अनुग्रह हो और प्रभु आपके ज्ञान को प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी। इस समय जो दास आपके वचन को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके होठों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि जो कुछ वो बोले परमेश्वर वो हर एक व्यक्ति के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनाए। जिन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया है उनको प्रभु जी, उनके लिए अवसर आपको स्वीकार करने का कारण बन जाए प्रभु जी। आगे के समय को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। इस आयोजन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए हमारे बीच उपस्थित है दिल्ली से ब्रदर रॉबिन एडविन जी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम रॉबिन एडविन है। मैं दिल्ली के पास गुड़गांव में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ बात करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा और बिशप खैलक को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। आज एक विशेष दिन है, स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके में बात करना और भी खुशी की बात है। आज मेरा विषय होगा, बात करने का एक मुख्य विषय है, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली इस समय पर, कि हम अपने जीवन में विजयी कैसे हो सकते हैं, हम जयवंत कैसे हो सकते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे माहौल बदलते जा रहा है कि हम विजयी कैसा हो सकते हैं। आज के समय में आप देखते हैं कि पूरा सब कुछ बदल चुका है। अगर 8 महीने पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, लोगों को लग रहा था कि हम सब चीजों में नियंत्रण है, बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे, इकोनॉमी 7% में ग्रो कर रहा था, एवरीथिंग वाज ग्रोइंग, बिजनेसेस वर गुड, लोगों का करियर अच्छा चल रहा था, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उनका करियर बढ़ रहा है। उनको लग रहा था कि मैं इस तरह से मैं अपने जीवन में आगे चले जाऊंगा, मेरा बिजनेस में इस तरह से बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, जैसे द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस मस्ट बी थिंकिंग कि मेरा ये इस तरह से मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाऊंगा।
उनको लग रहा था कि वो नियंत्रण कर रहे हैं सब कुछ। दुनिया भर में ऐसे ही था। मनुष्य का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो सोच रहा था कि सब कुछ मैं नियंत्रण करता हूं। एक छोटा सा वायरस आने के बाद सब कुछ बदल दिया। पूरा दुनिया स्तंभित हो गया। मुंबई, जिसको बोलते हैं कि सिटी दैट नेवर स्लीप्स, वहां पे बिल्कुल शांति हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मनुष्य ने जब देखा कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वो उसके पास जाना चाहता है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, वो है परमेश्वर। और ये एक जो स्थिति हुआ है, इससे हमें बिल्कुल पता चलता है कि मनुष्य के नियंत्रण में कुछ नहीं है। उसको लगता है, हमें लगता है कि मेरा जीवन पूरा मेरे नियंत्रण में है, मेरा करियर मेरे नियंत्रण में है, मेरा बिजनेस मेरे नियंत्रण में है, पर बिल्कुल नहीं है। आज हमें उसका पूरा विश्वास हो गया है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। आज मैं जब विजयी होने के बारे में बात करने वाला हूं, इसमें पौलुस रोमिया के अध्याय में 11वें अध्याय में उन्होंने कहते हैं कि जयवंत से बढ़कर हम हो सकते हैं। पर जब वो कहते हैं, इसके पहले वो वचन को हम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि पौलुस का जीवन किस प्रकार का रहा, उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, और वो कब कहते हैं कि उनका जीवन जयवंत से बढ़कर है। तो सेकेंड मतलब दूसरा कोरिन्थिया 11वीं अध्याय और 24 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतों से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव हुआ, 3 बार मैं जहाजी दुर्घटनाओं से फंसा, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में, गैर यहूदियों के खतरों में, नगरों के खतरों में और समुद्र के खतरों में, भाइयों के माध्य होने वाले खतरों में रहा हूं। मैंने परिश्रम और कष्ट में, रात रात भर जागने में, भूख और प्यास में, अक्सर निराहार रहने में, ठंड में और उगाड़े रहने में दिन बिताए। ये था उनका जीवन, बड़ी मुश्किल से। ऐसा आप पढ़ेंगे तो ये भी है कि उनको इतना पीटा गया था और उन्होंने सोचा कि ये मर गए हैं, उनको शहर के बाहर फेंक दिया गया था। पर रोमियो 8वीं अध्याय और 37 में वो कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। We are more than conquerors through him who has loved us. अपने आप में नहीं, जिसने हमसे इतना प्यार किया है, प्रेम करते हैं, उनके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जब पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि उतने कठिनाई में जहां पे उन्होंने मृत्यु की सामना की है, और वो कहते हैं कि उनका जीवन जयवंत से बढ़कर है। कठिनाइयों को पार करने के लिए परमेश्वर उनको शक्ति देता है, तब वो जयवंत बनते हैं। कठिनाई में डूब जाते हैं तो वो जयवंत कभी नहीं बनेंगे। कठिनाइयां आई, पर वो कठिनाइयों को पार करने के लिए परमेश्वर ने उनको शक्ति दिया, इसलिए वो जयवंत से बढ़कर है। पर परमेश्वर उनको शक्ति देगा करके विश्वास कैसे होगा? आप विश्वास कब करोगे कि परमेश्वर मुझे शक्ति देगा, बल देगा कि मैं इस कठिनाइयों को पार कर सकूंगा? ये विश्वास तब होता है, तब आपको विश्वास होगा जब आपको पता होगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर सोच लो आपके जीवन में कुछ मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है, इसमें कि कोई किसी को आपको मदद करना है, कौन मदद करेगा? जो आपको जानते हैं बहुत दूर से, क्या आप उनके पास जाके पूछोगे कि नहीं मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं, मुझे मदद चाहिए? आप अपने भाई या बहन के पास जाएंगे, शायद वो मदद कर ले, या आपके माता पिता के पास जाएंगे तो शायद वो थोड़ा ज्यादा मदद कर सकते हैं, उम्मीद थोड़ा ज्यादा है।
अगर ऐसा कोई है जो आपके लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर आप उसके पास आके मांगोगे मदद तो वो करेंगे या नहीं? Probably 100% he will do it, वो जरूर करेंगे। वैसे ही है, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को आपके लिए बलिदान किया। आप अगर इसको देखेंगे एफिशियंस 5वें अध्याय और 2 वचन, इसमें ये लिखा है, प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने आपको इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के यहाँ पे बलिदान कर दिया। अभी आपसे परमेश्वर इतना प्यार करते हैं तो जरूर आप विश्वास कर सकते हैं कि वो आपको मदद करेंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको बल देंगे। कोई भी कठिनाइयों से आप ऊपर जाने के लिए, कोई भी कठिनाइयों को पार करने के लिए आपको जरूर बल देंगे। आप अगर आप देखते हैं कि विजेता हम होने के लिए कोई युद्ध लड़ना पड़ता है, राइट? कठिनाइयों को पार करना, कठिनाइयां, जब आप कठिनाइयों को सामना करते हैं तो वो एक युद्ध जैसा है। हमेशा विजेता तब होते हैं जब वो युद्ध लड़कर उसमें जीतते हैं, तब वो विजेता बनते हैं। अगर हम इस्राएली लोगों को देखते हैं, जब मूसा ने इस्राएली लोगों को कानान देश में ले गए, तो उनको कानान जो देश उनके लिए परमेश्वर ने दिया था, वहां पे लोग बसे हुए थे, उनसे लड़कर जीतकर फिर वो कानान पहुंचे, फिर उनकी लाइफ में, उनके जीवन में शांति, सुख सब आया था। पर वहां पहुंचने के लिए उस युद्ध लड़ना पड़ा, उसमें जीतना पड़ा। उसी प्रकार हम विजयी तब बनते हैं जब हम युद्ध लड़कर उसको जीतते हैं। पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये युद्ध क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना 16वीं अध्याय और 33वीं वचन में, यूहन्ना 16वीं अध्याय और 33वीं वचन, इसमें परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश होता है, तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी। ये कभी नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगा, पर परमेश्वर ये कहते हैं कि साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसे विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ आपके लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया है। जब आज इस कोरोना के कारण बहुत लोगों के, बहुत जगह पे कंपनियों में बिजनेस नहीं है तो बंद कर रहे हैं, लोगों को कम कर रहे हैं, पगार, सैलरी को कम कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जगह पे रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स में 30-40 लोग, मेरे एक दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट में 40 लोग काम करते थे। अभी रेस्टोरेंट बंद है तो वो 3 महीने उन्होंने अपने पैसे से दिए, बाद में वो दे नहीं पाए तो लोगों को छोड़ना पड़ा। किसी को बीमारी हो गई, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है। जिसके कैरियर चल रहा था, बिजनेस कम हो गया है, उनको पता नहीं आगे उनका क्या होने वाला है करियर में। किसी ने लोन लिया है घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अभी नौकरी नहीं है, क्या करेंगे? कठिनाइयां हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पर परमेश्वर आपको पूरी तरह प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि ये सब एकदम से गायब हो जाएगा, पर इसे पार करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा, बल देगा, क्योंकि वो आपसे पूरी तरह प्यार करता है। आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं 2 चीज बताऊंगा जो बहुत जरूरी है इससे मुश्किलें, कठिनाइयों को हमें लड़ने के लिए। पहली बात, हमारा युद्ध विश्वास की रवैया से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? विश्वास की रवैया से होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तो हमने देखा है पौलुस का जीवन, उनकी कितनी कठिनाइयां आई,
पर वो पूरे विश्वास से उस कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। वो उनको बल दिया है, वो उनको शक्ति दिया है उसे पार करने के लिए, उसको सामना करने के लिए और विजयी होने के लिए। और दूसरी बात, हम सब जानते हैं इस कहानी को, पर मैं एक और बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहानी ऐसा है जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। ये है दाऊद और गोलियात की वो कहानी। राइट, आप देखते हैं कि वो लड़ाई में दाऊद एक लड़का है, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया है, बट ये फिलिस्तीनी गोलियात जो है उसने कई युद्ध किए हैं। वो एक सोल्जर है जिसको युद्ध करना आता है, और वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, चौड़ा है, ताकतवर है। दाऊद एक लड़का है, पर अगर आज उससे झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, पर वो किस हिसाब से लड़ाई कर सकते हैं? आप देखेंगे एक्सपीरियंस, लड़ाई करने का एक्सपीरियंस उनको नहीं है, युद्ध नहीं किया कभी किसी के साथ, ना ही उनके पास वो शक्ति है, ना ही उनके पास वो हाइट है, वो फिजिक है, या उनके पास वो हथियार है जो वो फिलिस्तीनी गोलियात के पास है। पर उनके पास क्या था? विश्वास, परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास था कि परमेश्वर उनको विजयी बनाएंगे। ये हम देखेंगे 1 सामुएल 17वीं अध्याय और 37 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें यह लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजों से बचाया, वही इस फिलिस्तीनी के हाथ से मुझे बचाएगा। जिस परमेश्वर ने जानवरों से दाऊद को बचाया, वही इस गोलियात से भी बचाएगा। विश्वास का जीवन सब कुछ बदल सकता है। अगर आप कमजोर होकर पता नहीं मुझे क्या होगा ऐसे डर के हुए अगर वो जाता लड़ाई करने के लिए, कभी नहीं जीतता। परमेश्वर के ऊपर विश्वास, उसने पूरी तरह विश्वास किया और लड़ाई किया, और हम जब सब जानते हैं कि क्या हुआ उसमें, उनकी विजयी हुई। क्या आप विश्वास करते हैं कि इतना मुश्किल है कि आज लगता नहीं है कि मेरे इस दौर से मैं कभी निकल पाऊंगा, पर अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपका मदद जरूर करेगा कि आप इस दौर से, इस मुश्किल से, इस कठिनाई से आप जयवंत होंगे। ना ही जयवंत होंगे, जयवंत से बढ़कर होंगे। ये आप देख सकते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत से कहानियां हैं जो जिसे मैं कह सकता हूं कि उस समय में मुझे नहीं पता था। एक उदाहरण मैं दूंगा। एक समय पे मेरा ट्रांसफर हो रहा था, मैं एक जगह पे काम कर रहा था। मैंने सोचा था कि नहीं, ये इस जगह जाऊंगा तो मेरा करियर का क्या होगा, कैसे चलेगा। मैं तो अभी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट में मुझे लग रहा था कि प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हो रहा है, इसके कारण मेरा करियर आगे जाएगा, मेरा लाइफ बदलेगा, पर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मुझे। मैंने प्रार्थना किया कि मुझे नहीं जाना है, पर परमेश्वर मुझे ले गए। 7 साल के बाद मुझे पता चला कि वो मेरे लिए कितना अच्छा था। हमेशा ये नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता है, जो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है वो करते हैं। मैंने विश्वास किया जब भी मैं गया था कि मेरे लिए यही अच्छा है। मेरा मन की इच्छा अलग थी, पर मुझे मालूम था कि परमेश्वर अगर मुझे ले जा रहे हैं तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा करियर बदल गया। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरा लाइफ बहुत ही अलग दिशा में जाता था। पर मुझे ये समझने में कितना टाइम लगा? 7 साल लगे। 7 साल के बाद पता चला, वाव, उस दिन जो हुआ था उसके कारण ये सब हुए हैं। और हृदय से मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। तो हमें विजयी होने के लिए, जयवंत होने के लिए परमेश्वर को पूरी तरह विश्वास करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पौलुस जो है रोमिया में कुछ 3-4 चीजें बताती है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम देखेंगे रोमिया के अध्याय 8वें अध्याय में, हम एक बार फिर से देखेंगे रोमिया के 8वें अध्याय और 31, इसमें वो कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है।
यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध में है? आप सोच लीजिए, जिसने पूरी जगत की रचना की है वो परमेश्वर आपके पक्ष में है। क्या कोई आपके सामने खड़े हो सकता है? क्या आप कभी हार देख सकते हैं? नहीं। अगर आप 32वें वचन में देखेंगे तो उसमें कहते हैं, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों न देगा। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, बलिदान कर दिया, क्या हमें ये सब नहीं करेंगे? जो हमारे लिए अच्छा है वो नहीं करेंगे? क्या हमें विजयी नहीं बनाएंगे? ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी कठिनाई इतना ज्यादा हो जाती है, हमें लगता है कि परमेश्वर है क्या? परमेश्वर है क्या? क्या परमेश्वर मेरा सुन रहा है? क्या मुझे इससे कभी बाहर निकालेंगे? पर आपको विश्वास रखना जरूरी है। आपको विश्वास अगर आप करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने आप को बलिदान दिया और आपको मुक्ति किया है, तो आपको यह भी विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर आपको विजेता बनाएंगे। दूसरी बात, पहली बात थी हमें विश्वास की रवैया से युद्ध करना चाहिए, और दूसरा है हमें घुटने में रहकर युद्ध करना चाहिए। घुटने में रहकर युद्ध करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, घुटने में रहकर प्रार्थना करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं इसके लिए। एक किंग यहोशापात करके एक राजा थे। इसके बारे में हम इतिहास की दूसरा किताब में पढ़ते हैं, 20वें अध्याय में। मैं उसमें जाऊंगा नहीं अभी, पर बस आपको ये कहना चाहूंगा कि किंग यहोशापात के जीवन में ऐसा एक दौर आया कि उनके विरुद्ध 3 राजाएं बड़ी सेना लेके आ गए, पर उनको पता नहीं क्या करना चाहिए। उन्होंने बस एक ही काम किया, अपने पूरी प्रजा को बुलाया, उन्होंने उपवास रहा और प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, परमेश्वर मैं नहीं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। I don't know what I should do, but God, I trust in you. मैं परमेश्वर आप पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने उस राजा को विजयी दिया था, उन्हें जाके लड़ना भी नहीं पड़ा, पर विजयी दिया था परमेश्वर। God can do the impossible. You have to be on your knees. पूरा राजा और उनका प्रजा प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने विजयी बनाया। हमें भी परमेश्वर विजयी बनाएगा अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास की रवैया से हम जिएंगे, तो हमें जरूर विजयी मिलेगा। ये जीवन का युद्ध जो है, ये हमारे दिमाग से शुरू होता है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वाक्य वचन हम अपने दिमाग में डालें। उसका मतलब है कि हमें परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका वचन हमें अपना हृदय के अंदर, अपने दिमाग के अंदर लेना चाहिए, जो आपको विश्वास दिलाए, जो आपके परमेश्वर के वचन आपको विश्वास दिलाता है। परमेश्वर के वचन के बारे में आप परमेश्वर के प्यार की विश्वास आपके जीवन में बढ़ेगा। अगर आप ये नहीं डालते तो कुछ और आपके दिमाग में बनता है, दुनिया की चीजें, उससे डर पैदा होता है और हार होती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और उसे हमें अपना दिमाग में डालना चाहिए। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि करियर में बहुत बिशप ने कहा था कि ज्यादातर जवान लोग हैं जो 30 साल से कम है, तो आप अपने काम कर रहे होंगे, अपने करियर बन रहा होगा। मैंने 25-26 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं आपको एक चीज करना चाहूंगा, हम चाहते थे कि मेरा करियर जो है, मेरा काम जो है, इस तरह से जाना चाहिए ताकि मैं 3 साल में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर मैं 5 साल में यहाँ पे और 10 साल में यहाँ पे, 15 साल में मुझे इस पोजीशन में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ से मुझे आपको एक ही चीज आपको कहना है कि आप जो भी काम करेंगे पूरे हृदय से और बढ़िया तरीके से आपको करना चाहिए, जिससे परमेश्वर का महिमा हो। आपको आपके काम देख के परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर ये चीज में आप हमेशा ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपके काम को भी आशीष करेगा और आपके करियर में ग्रोथ होता है। मेरे जीवन में ऐसे ही रहा है। एक और चीज मैं कहूंगा, अगर आप यीशु मसीह को पूरी तरह जानते नहीं है, आपने अपने
जीवन में उनको अपनाया नहीं है, तो विजयी होने का सबसे बड़ा काम है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें और जिससे आपको पता चले कि उन्होंने आपके लिए इतना प्यार किया है कि आपके पाप के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया ताकि आपको मुक्ति मिल सके। तो वो बहुत ही जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक जयवंत जीवन जीने के लिए। क्या हम प्रार्थना करें? परमेश्वर इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके वचन के ऊपर ध्यान कर सके और हम ये जान सके कि परमेश्वर आप हमें जयवंत बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हम आपके प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना प्यार किया कि हम अपने आप को हमारे लिए बलिदान दिया। परमेश्वर हम अपने पूरे जीवन को आपके हवाले समर्पण करते हैं और यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर रॉबिन, इट वॉज अ वंडरफुल मैसेज। बहुत ही यूजफुल था हमारे लाइफ के लिए और स्पेशली हमारे यूथ के लिए। हमें अपने लाइफ में कैसे विजय पाना है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच ब्रदर। आइए हम आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर सा गीत गाते हैं, अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु की महिमा करते हैं। लेट्स वेलकम AYF। यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा। अल्फा ओमेगा यीशुआ मसीहा, आदि और अंत है यीशुआ मसीहा। जीवन की रोटी यीशुआ मसीहा, जीवन का जल है यीशुआ मसीहा। यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा। पूरब के गाए यीशुआ मसीहा, पश्चिम के गाए यीशुआ मसीहा, उत्तर के गाए यीशुआ मसीहा, दक्षिण के गाए यीशुआ मसीहा। सब मिलकर गाए यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा। तो अब हम वन डे यूथ रिट्रीट के आखिरी में आ चुके हैं, तो चलिए अब हम वोट ऑफ थैंक्स सुनते हैं। अब सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस दिन का मीटिंग आयोजन करने में परमेश्वर ने हमको मदद किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ भले ही हम सब जो हैं एकत्र एक जगह में मिलकर हम आज का मीटिंग हम कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी जैसे कि जो वचन मैंने पढ़ा है, सब चीज़ जो है परमेश्वर के बच्चों के लिए या फिर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन सब को भलाई के लिए उत्पन्न होता है। इस YouTube के द्वारा इस यूथ मीटिंग आयोजन करने में परमेश्वर ने हमको मदद किया और जिसके द्वारा हम ना केवल मुंबई में रहने वाले हमारे जवान भाइयों और बहनों नहीं, बल्कि मुंबई से बाहर रहने वाले सारे जवान भाइयों और बहनों को भी पहुंचने में परमेश्वर ने हमको मदद किया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस मीटिंग को इस तरह से आयोजन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। और दूसरी चीज़ हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय हमारे बिशप साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग जो है आयोजन करने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा सहायता रहे। हम में से किसी ने भी जो है ऐसा एक कार्यक्रम करने का विचार भी नहीं किया था,
लेकिन फिर भी बिशप साहब ने जो है हमसे कांटेक्ट किया और हमको जो है इस तरह से मीटिंग आयोजन करने के लिए हमको उत्साहित किया। इसके लिए हम जो है हमारे हृदय से हमारे बिशप साहब राइट रेवरेंड डॉक्टर टी कालेब को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस बार हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे सारे एरिया के एरिया चेयरमैन लोगों के लिए भी, जिन्होंने अपने कीमती समय जो है हमको दिया है ताकि हमारे साथ जो है इस मीटिंग के बारे में उनका राय जो है वो हमारे साथ बांट सकें। उतना ही नहीं बल्कि अपने सारे एरिया के कलीसियाओं को जो है उत्साहित करके इस मीटिंग में भाग लेने के लिए उनका भी जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हम सारे एरिया चेयरमैन लोगों को भी जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम नहीं भूलना चाहेंगे हमारे सारे पासवान लोगों के लिए भी, जो हर एक कलीसिया के अगुए हैं, चलाते हैं, उन्होंने भी जो है अपने सारे जवान भाई बहनों को जो है इस मीटिंग में भाग लेने में उनको भी उत्साहित किया। इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ पासवान के साथ सारे कलीसिया के यूथ लीडर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं। आप सबके सहायता के बिना जरूर इस मीटिंग जो है इतना सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए आप सबको वापस एक बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस समय हम धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक जवान भाई बहनों के लिए जो कोई आज इस मीटिंग को जो है आप देख रहे हैं। परमेश्वर जो है आप सबको जो है आशीष करें। और धन्यवाद देना चाहेंगे कल्याण ईस्ट तमिल चर्च के जो है जवान लोगों के लिए, AOF टीम और उनके पासवान, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हमने जो है उनसे इस मीटिंग YouTube में करने के लिए हमने उनसे विनती किया, उन्होंने जो है भले ही 2 हफ्ते का समय ही बाकी था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है हमारे निमंत्रण को जो है स्वीकार किया और हमारे लिए इतना मेहनत करके कोशिश करके उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम को जो है आज हमको उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए AOF टीम और कल्याण ईस्ट तमिल चर्च के पासवान को भी जो है हमारे हृदय से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज जिन्होंने भी जो है भाग लिया है, प्रार्थना करने में या फिर गाना गाने में, प्रोग्राम्स जो है प्रेजेंट करने में और संदेश बांटने में, उनको भी जो है मेरे हृदय से जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर जो है सबको आशीष करें। विश्वास करता हूं कि आज का एक कार्यक्रम जो है आप सबके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। वापस एक बार आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम हमारे मीटिंग के आखिरी दौर पर आ चुके हैं। जैसे कि आज हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया हमारे इस 1 डे यूथ रिट्रीट को, गाना गाया, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और बहुत कुछ सीखने मिला। हमने ये जान लिया है कि हमारे लाइफ में विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। इस सुंदर से मौका के लिए अब मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे बिशप और डायसिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम अंतिम मोड़ पर आए, हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस यूथ मीटिंग अच्छी तरह से चलाने के लिए आपने हमारे जीवन में दिया हुआ कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास प्रभु जी, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपके दासों के द्वारा हमारा साथ बात किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस कठिन परिस्थिति के समय में हम हमारा जीवन में कैसा रहना, कैसा जीना, कैसा विजय पाना, ये सभी बातों को हम सीखने के लिए आपने हमारे जीवन में दिया हुआ इस अवसर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम हमारा जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आने वाला दिन में प्रभु कोई भी ऐसी जो तकलीफ को देखे हम डरना नहीं, परंतु उसके सामना करके हमारे जीवन में एक विजयवंत जीवन जीने के लिए हमें कृपा करो। इस कोविड-19 हमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया हुआ ताकत, आपने हमारे जीवन में दिया हुआ शक्ति, इसके द्वारा प्रभु हमने उसको विजय पा सकते। ये आशा और ये इच्छा के साथ हम चलने के लिए हमें कृपा करो। और प्रभु जो आने वाला दिन में भी प्रभु हम कोई भी तकलीफ में जाएगा तो भी हम आपको याद हमेशा कर आपने हमारे जीवन में दिया हुआ इस ज्ञान को प्राप्त करके
उसके द्वारा प्रभु हमने क्या करना है, क्या हमारे लिए आवश्यक है, वो सब समझकर हमें आगे बढ़ने के लिए हम कृपा कर। हम सबको आप आशीर्वाद करो। छोटी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगत सदा काल हमारा साथ रहे, आमीन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। जय 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 जय